بھر میں کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ وہیں انجمن مبصرین پاکستان کے زیر اہتمام کراچی میں پاکستان کشمیر یکجہتی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا اور شاعری کے ذریعے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کے صدر شاعر جاذب قریشی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انجمن مبصرین پاکستان گزشتہ 47 سالوں سے کراچی میں ادبی اور ثقافتی تقاریب کا انعقاد کر رہی ہے جو قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے اس مشاعرے میں ملک بھر کے شعراء حضرات نے شرکت کر کے مشاعرے کو یادگار اور کامیاب بنایا ہے، جس کے لیے میں انجمن مبصرین کے چیئرمین راشد لطیف، صدر زاہد جعفری اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی شاعر نسیم شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شعراء کو کراچی مدعو کرنے میں تعاون کیا۔ کہ آج کی تقریب ایک علمی، ادبی اور تہذیبی معیارات کی تقریب تھی۔ پہلی بات تو یہ، دوسری یہ کہ ایک تنظیمی صورتحال تھی۔ اس میں افراتفری نہیں تھی جیسے عام جلسوں میں اور تقریبات میں ہوتی ہے۔ سب لوگوں نے بہت سنجیدگی سے، جو سامعین تھے، ہمارے قارئین تھے، بہت سنجیدگی سے سنا اور تمام ہمارے پڑھنے والوں نے بہت خوبصورتی سے اپنی جو اظہار کرنا چاہتے تھے کشمیر کے حوالے سے اور زندگی کے حوالے سے اور اس شہر کے مسائل کے حوالے سے، انہوں نے سب باتیں اپنے سننے والوں تک پہنچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں زندگی اور سماجی حالات اور اس کے علاوہ یہ کہ تہذیبی ایک صورتحال جو تھی اس کی، کہ اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی ہنگامہ، کوئی خلفشار نہیں تھا۔ میں اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ کشمیر یکجہتی مشاعرے میں شاعر اپنی شاعری سے تقریب کے شرکاء سے داد وصول کرتے رہے۔ آثار کیا ملیں گے کسی خط و خال کے، آثار کیا ملیں گے کسی خط و خال کے، آثار کیا ملیں گے کسی خط و خال کے، آئینے خود اسیر ہیں اپنے جمال کے، آثار کیا ملیں گے کسی خط و خال کے، آئینے خود اسیر ہیں اپنے جمال کے، میں سو گیا تھا رات کو جس کی پناہ میں، میں سو گیا تھا رات کو جس کی پناہ میں، وہ شخص لے گیا میری آنکھیں نکال کے، میں سو گیا تھا رات کو جس کی پناہ میں، وہ شخص لے گیا میری آنکھیں نکال کے، دوست کیوں دشمنی پہ اترے ہیں، دوست کیوں دشمنی پہ اترے ہیں، ان کی یہ جارحانہ دشمنی پہ اترے ہیں، ان کی یہ جارحانہ مر چکی شاید امت مسلم، مر چکی شاید امت مسلم، اس قدر بزدلانہ خاموشی حوصلے بڑھ گئے ہیں ظالم کے، حوصلے بڑھ گئے ہیں ظالم کے، بن گئی بہانہ خاموشی، حوصلے بڑھ گئے ہیں ظالم کے، بن گئی بہانہ خاموشی، دیکھتی ہے تماشا ایک دنیا، دیکھتی ہے تماشا ایک دنیا، اس کے شانہ بشانہ خاموشی، دیکھتی ہے تماشا دنیا، اس کے شانہ بشانہ خاموشی۔ یہ جو دل میں عجب کدورت ہے، یہ جو دل میں عجب کدورت ہے، میرے حاسد کا رنگ نفرت ہے، میرے حاسد کا رنگ نفرت ہے، اور میرے حاسد کا رنگ نفرت ہے، جو بھی رستہ ملا
थी बंद गली, जो भी रास्ता मिला थी बंद गली, राहे मंजिल निशाने हसरत है, राहे मंजिल निशाने हसरत है। और अब तो बच्चों के पांव जमने तक, अब तो बच्चों के पांव जमने तक जिंदा रहना भी एक जरूरत है। अब तो बच्चों के पांव जमने तक, अब तो बच्चों के पांव जमने तक जिंदा रहना भी एक जरूरत है। अब तो बच्चों के पांव जमने तक जिंदा रहना भी एक जरूरत है, जिंदा रहना भी एक जरूरत है। ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है, ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है, हुस्ने सूरत तो नहीं है कोई, हुस्ने सूरत तो नहीं है कोई, रोशनी ये मेरे अफकार की है। हुस्ने सूरत तो नहीं है कोई, रोशनी ये मेरे अफकार की है। एक अलामत ये मेरी सोच की है, एक निशानी मेरे किरदार की है। नफरतों की सियाह रातों में इश्क से थोड़ी रोशनी मांगो, नफरतों की सियाह रातों में इश्क से थोड़ी रोशनी मांगो, इससे पहले कि ख्वाब मर जाएं, इससे पहले कि ख्वाब मर जाएं, अपने ख्वाबों की जिंदगी मांगो। मुशायरे में डॉक्टर फरहत अब्बास इस्लामाबाद से, नसीम सहर रावलपिंडी, रहमतुल्लाह आमिर KPK, डेरा इस्माइल खान से मोहतरमा महजबीन, गजल अंसारी लंदन से, जबकि कराची से डॉक्टर इकबाल पीरजादा, नसीम शेख, डॉक्टर नुसरत अब्बासी, राशिद नूर, यासिर सईद सिद्दीकी, शायर अली शायर, नवाज कमाल, सकाफत अली नादिर ने शिरकत की। देखिए, मुझे इस हवाले से बड़ी खुशी हुई कि अंजुमन मुबस्सरीन का ये जो खूबसूरत मुशायरा था, उसमें हमें कराची में अपने बहुत से पुराने दोस्तों से मुलाकात का भी मौका मिला और कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पर चूँकि कश्मीर यकजहती मुशायरा था, इसमें बहुत से शुअरा ने मुझ समेत कश्मीर से अपनी मोहब्बत का और कश्मीर की आज़ादी के लिए इस वक्त जो जद्दोजहद हो रही है उसमें शिरकत का ऐलान किया। आज के इस मुशायरे में एक तो हम उर्दू ज़बान के साथ यकजहती का इजहार था, दूसरा कराची के हवाले से हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ दिया जा रहा है, शायरी को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो हम दानिस्ता यहाँ आए कि आल पाकिस्तान मुशायरे में शरीक हों और आकर महसूस हुआ कि यहाँ की शायरी हमारे पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर एक दूसरे को अपने ख़यालात से आगाह भी करते ही रहना चाहिए। कराची के अदबी जो तकारीब हैं उनमें से ये मुनफरिद दिखाई दे रही है और इंशाल्लाह देती भी रहेगी कि अंजुमन मुबस्सरीन के मुशायरे के अंदर मखसूस शुरा को दावत दी गई जो कि एक मुस्तनद कलाम पर मुश्तमिल थी और मुबस्सरीन के तमाम ओहदेदारान ने इसमें जो मेहनत की, जो कावश की, वो अदब के लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा जो हम साथ लेके जा रहे हैं वो आपकी मोहब्बतें हैं। अदब के हवाले से कराची वैसे भी बड़ा नाम है, लेकिन आपकी तंजीम मुबस्सरीन जो है इसका नाम बहुत पुराना है और बहुत सीनियर तंजीमों में शुमार होती है। सबसे पहले तो मैं DNN को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त चैनल जो है वो काम कर रहा है और सबसे पहले अतहर साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनकी काविशें रंग लेकर आ रही हैं और शहर कराची में जहाँ हर जगह जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी कवरेज के लिए DNN फौरी पहुँचता है। तकरीब आज की इस एतबार से तो बहुत अहम है कि आज की तकरीब एक इल्मी, अदबी और तहजीबी मेआरात की तकरीब थी। पहली बात तो ये, दूसरी ये कि एक तंजीमी सूरत हाल थी। इसमें अफरा तफरी नहीं थी जैसे आम दरसों में और तकरीबात में होती है। सब लोगों ने बहुत संजीदगी से, जो सामईन थे, हमारे क़ारीन थे, बहुत संजीदगी से सुना और तमाम हमारे पढ़ने वालों ने बहुत खूबसूरती से अपनी जो इजहार करना चाहते थे कश्मीर के हवाले से और ज़िंदगी के हवाले से और इस शहर के मसाइल के हवाले से उन्होंने सब बातें अपने सुनने वालों तक पहुँचाई। मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब जो है इस एतबार से बहुत अहम है कि इसमें ज़िंदगी और समाजी हालात और इसके अलावा
ये तहजीबी एक सूरत हाल जो थी इसकी कि इसमें कोई किसी तरह का कोई हंगामा कोई खलफसार नहीं था। मैं इसको इस बात को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज का DNN जो आप लोग कवरेज करने आए हैं, बहुत अच्छा खुशी हो रही है कि चैनल जो है अब अदबी प्रोग्रामों को भी हमारे कवरेज देते हैं और ये देना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रोग्राम इस वक्त करा रहे हैं, जैसे आज कश्मीर डे के हवाले से आज 4 मुशायरे थे हमारे कराची शहर में, सिर्फ ये सेंट्रल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये प्रोग्राम है और कश्मीर से हम इदारे यकजहती के लिए हमने प्रोग्राम किया, तो आपने देखा कैसे लोग आए यहाँ पे और बड़ा एंजॉय किया। यहाँ भट्टी साहब है जिनकी जगह है ये स्कूल, उसमें जो मुशायरे करते हैं, मुस्तकिल माहाना नशिस्त होती है इसमें। तो आज कश्मीर के हवाले से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। कश्मीर डे के हवाले से मुशायरा था और दूसरा हमारे अदबी बड़े बड़े नामों का इकट्ठ था। मेरा शहर यहाँ से तकरीबन 18 घंटे की मुसाफत पे है और हमें बाई बस आना पड़ता है, लेकिन कराची की मोहब्बत, कराची के लोगों की मोहब्बत हमें यहाँ तक खींच के ले आई है। जी, अंजुमन मुबस्सिरीन पाकिस्तान सालाना कुल पाकिस्तान मुशायरे मुनक़्क़िद करती है। इससे पहले भी मैं शरीक हो चुकी हूँ और बहुत अच्छा मुशायरा होता है। पूरे पाकिस्तान से अहम शोरा शायरात इसमें शिरकत करते हैं। आज भी ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से ये मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हमारे नाम गिरामी शोरा कराम शरीक थे। कश्मीर के हवाले से भी बहुत अच्छे अशार सुनने को मिले। इसके अलावा भी जो हमारे शोरा थे और तादाद भी सामईन की भी बहुत अच्छी, तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। पाकिस्तान का मुशायरा यकजहती कश्मीर के हवाले से बहुत अच्छा रहा, अच्छा मुशायरा था। पूरे पाकिस्तान से शोरा कराम प्रोग्राम में आए थे। DNN की बहुत बेहतरीन कोशिश थी कि उसने इस पूरे मुशायरे को कवरेज की, इस मुशायरे की। मैं DNN का बहुत मशकूर हूँ कि उसने इस मुशायरे की कवरेज की और इस मुशावरे को इतनी अहमियत दी। बहुत शुक्रिया DNN। प्रोग्राम की निजामत सलमान सिद्दीकी ने बड़ी खूबसूरती से अदा की। जाहिद जाफरी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन फरहान सिद्दीकी के साथ सादिया शुएब, DNN न्यूज़, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।